Hello student, welcome to Internet Programming Tutorial Series. Today we discuss about the chapter number 6. That name is nothing as your Ajax, and that Ajax is full form is nothing as your asynchronous JavaScript and XML. So we right now here the different keywords are there. So keywords are nothing as your asynchronous and XML. So what mean by the asynchronous and how to use the XML on their use here. Okay, so that is the whole thing we can discuss. But before we discuss what are the applications right now today we are using the Ajax, and then what are the difference between the what are the web system architectures and we are using Ajax engine on there. So that is the whole thing we can discuss theoretically. Okay, and then we discuss about the practically. So first of all, we have to know very well most of the students which are the Ajax application are using the day by day. Okay, so you know very well that is a Google the best example regarding to that. So suppose I type here or the Google text box we have. Okay, and I type suppose the int, so that regarding the whatever the keywords they are, which is to be give me a suggestion list. Okay, so int, so that is the internet, we have the one keyword. Then that is the intelligence, that is the keyword we have regarding to they are showing. So that the keyword suggestions is nothing as what your Ajax. So that request which is to be go on their Google server, and from the Google servers whatever the key regarding that the data we have they are showing on the list. So that is the best example of that. So without reloading the page I got the keyword suggestions on there. Okay, so that is the best example of that. Second example is nothing as your Ajax, uh, like your YouTube or YouTube, that is the best example. Okay, if suppose you watch any video, okay, and you like suppose that the video that regarding the content, so at that below you provide some comments on there. Okay, and I published that video last 3 years ago. So from the last three to till date, what are the comments on there that the video we can uh, we can see. Okay, on that the below side of the comment or below side of the video, sorry. Okay, so that the at that whenever come on the below on that the comment sections, we got first only three comments on there. Once you scroll that the button, okay, once you scroll down that the button, at that time what are the previous comment we got on that the regarding the video. So it means what, once you click on the scroll button, it means what, we got the old one, whatever the comments on there we can see. That is the best example of your Ajax. Okay, so without reloading that the video we got all the comments we got on that the comment sections. That is another example of that. Okay, so how to use that the Ajax uh, in a web system architectures. So you know very well that uh, that the video regarding we already discussed. Okay, web system architecture, that is the video lecture number 2. Okay, okay, so we go to the presentation first of all, and we find out regarding the definitions of that. Okay, so in web system architecture we know very well that the tiers are there, 2 tier, 3 tier. So here according to we take the 3 tier architecture. So from the browser we send the request to the web server and the database again they send the response to the web server, and that is the HTML CSS, okay, or browsers. So what happen, जब हम वेब सिस्टम आर्किटेक्चर में काम करते हैं, ओके, तभी जो भी रिक्वेस्ट होती है आपकी, ओके, जो भी रिक्वेस्ट आपने बनाई है, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है सपोज यूज़र नेम पासवर्ड, तो यूज़र नेम पासवर्ड मेरा जो भी है वो मुझे सेंड करना है डेटाबेस को, और डेटाबेस से मुझे चेक करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो उसके रिगार्डिंग जो जो टेक्निकल टर्म्स थी वो हमने देखी थी, कि जैसे कि ब्राउज़र से जब रिक्वेस्ट जाता है यहाँ पे वेब सर्वर में, तभी वेब सर्वर कुछ भी हो सकता है, अपाचे हो सकता है या ग्लैशफिश हो सकता है, दैट इज़ अप टू यू, आप जो भी लेना है आपको ले सकते हैं। जैसे वेब सर्वर पे आएगा, दैट द वेब सर्वर दे कंटेन द डिफरेंट लैंग्वेज, एंड दैट लैंग्वेज दे आर नो
what the request which is to be come from the browsers. ओके, तो वो सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं वेब सर्वर में, जैसे कि है JSP है, PHP है, ओके, ASP है, सर्वलेट है। तो वो क्या करते हैं, जो भी रिक्वेस्ट आती है ब्राउज़र के थ्रू वेब सर्वर में, वो सारे रिक्वेस्ट के साथ जो भी कंटेंट है वो सारा रीड कर लेता है। जैसे कि ये रिक्वेस्ट है HTTP रिक्वेस्ट, ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, HTTP रिक्वेस्ट। ओके, तो ये वेब सर्वर में आने के बाद वेब सर्वर ने पढ़ लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कि मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड आ गया है। ओके, तो ये लैंग्वेज क्या करती है, यही डेटा जो है यूज़र नेम पासवर्ड, वो डेटाबेस को पूछती है कि भाई तेरे पास ये यूज़र नेम पासवर्ड है क्या, अगर है तो वो राइट है या रॉन्ग है। तो वो राइट या रॉन्ग है जो भी रिस्पॉन्स है वो उसी लैंग्वेज के थ्रू इस वेब सर्वर को बोल देता है। जैसे उसे मालूम पड़ा कि यस, हाँ, कि आई गॉट द यूजर नेम पासवर्ड राइट और रॉन्ग, ओके, so that they give the response again to that the browsers. Okay, so what is that, that is the HTTP response. ओके, ये शॉर्टकट है। जैसे ये रिस्पॉन्स आता है तभी ब्राउज़र में क्या होता है, अगर यूज़र नेम पासवर्ड राइट है तो देन व्हाट, वी कम टू द नेक्स्ट पेज, प्रोफाइल पेज। इफ इट इज़ रॉन्ग देन व्हाट, दे गिव द सजेशंस और दे गिव द मैसेज ऑन देयर दैट यूज़र नेम इज़ नॉट मैच विद द databases, or the username does not exist or password does not exist. Okay, that kind of the message we got on there. तो मतलब क्या हुआ कि once you take the request or event on there, that time the process which is to be on there, okay, which is that the process on behind the scenes. मतलब कि जैसे मैंने कोई इवेंट बनाया या कोई प्रोसेस किया, तो ये सारा जो प्रोसेस है, HTTP रिक्वेस्ट है, वेब सर्वर से लेके डेटाबेस तक, ये सब बिहाइंड द सीन्स हो रहा है, सामने सामने नहीं हो रहा है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग क्या हो रहा है कि जो भी आपका डेटा है आपके पास, ओके, तो वो डेटा अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है, क्लिक करने के बाद मेरे पास पेजेस जा रहे हैं, ओके, या नया पेज हो रहा है या रीलोड हो रहा है पेज। ओके, तो ये रीलोड करने की नौबत ही मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, सपोज मैंने क्लिक किया तो सेम पेज आई गॉट द रिस्पॉन्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैंने डाला यहाँ पे यूज़र नेम, ओके, यूज़र नेम डाला सपोज सरीन, तो वो क्या करेगा, डेटाबेस में जाएगा वेब सर्वर के थ्रू और यहाँ पे आएगा, तो सरीन है ऑलरेडी, तो इसको ये रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पे नेक्स्ट वाले पेज में या उसने कोई रीलोड करके कोई पेज में उसने मैसेज नहीं देना चाहिए कि पेज रीलोड होगा या मुझे कुछ क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यूज़र नेम टाइप किया सरीन, ओके, सरीन एन टाइप जैसे हुआ मेरा लास्ट वाला लेटर ये वाला, ओके, तो उसने क्या नीचे मैसेज देना चाहिए, यहाँ पे नीचे द यूज़र नेम इज़ वैलिड, ओके, दैट काइंड ऑफ द मैसेज। तो मैंने यहाँ पे कुछ रिफ्रेश नहीं किया, ना कोई बटन पे क्लिक किया या कोई पेज रिफ्रेश भी नहीं किया, तो दैट इज़ द थिंग व्हाट वी यूजिंग अजैक्स। ओके, तो ये वाली चीज़ें अजैक्स में होती है। तो अजैक्स कैसे रन होगा फिर, ओके, दैट यूज वी हैव टू यूज फॉर द अगेन द वेब सिस्टम आर्किटेक्चर, बट हियर the one entity which is to be added on there, that name is the Ajax engine. Okay, so we come to here the browsers, sorry, the Ajax engine. तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे ना जो भी रिक्वेस्ट है आपकी वो ब्राउज़र के यहाँ पे ना जाते, वेब सर्वर पे ना जाते, पहले कहाँ पे जाएगी, Ajax इंजन पे जाएगी, जो कि जो Ajax इंजन है वो प्योरली आपका जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना होगा। ओके, यू नो वेरी वेल जावास्क्रिप्ट, how we do this JavaScript language, JavaScript on the particular web page। आपको सबको मालूम है कि हम JavaScript कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं ब्राउज़र के ऊपर। ओके, तो ये चीज़ें वी कैन फाइंड आउट दैट रिगार्डिंग वीडियो इंट्रोडक्शन टू JavaScript एंड यू कैन डू इट राइट नाउ। ओके, सो तो ये ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आएगा आपके Ajax में, फिर Ajax इंजन देखेगा यस आई गॉट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउज़र HTML के थ्रू, ओके, और वो रिक्वेस्ट कहाँ पे दे देगा, इस वेब सर्वर पर दे देगा, और उस रिक्वेस्ट को मैं बोलूँगा यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट। ओके, HTTP रिक्वेस्ट आने के बाद वो क्या करेगा, सर्वर फिर डेटाबेस को देगा, फिर डेटाबेस किसको देगा, ये वाले वेब सर्वर को देगा। जैसे ये वाले वेब सर्वर पर दिया तो दैट इज़ व्हाट हियर
to come there, and that we call as the HTTP response. जैसे वो रिस्पॉन्स इस एजेक्स इंजन में आता है यहाँ पे, तो आने के बाद वो जो रिस्पॉन्स है वो XML के थ्रू उसको दे देगा. ओके, किसको? इस ब्राउज़र को. यहाँ पे कोई क्लिक इवेंट ही नहीं दिया है मैंने, जैसे कि प्रीवियस वन यहाँ पे. यहाँ अगर मैं वेब सिस्टम आर्किटेक्चर में देखूँ तो यहाँ पे एक बटन रहेगा. ओके, उस बटन पे मैंने जैसे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ये वाला यहाँ से आ रहा है, फिर इसको मिल रहा है. तो यहाँ पे मैंने कोई बटन ही नहीं लिया है. यहाँ पे मैंने क्या किया, सीधा यूज़र नेम मेरे पास फील्ड था इस ब्राउज़र के बीच में. ये ले देख लेता हूँ. चलो, यूज़र नेम है और नीचे पासवर्ड है. तो यूज़र नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने डाल दिया सरीन नाम यहाँ पे, सरीन. ओके, और उसके नीचे या उसके साइड में यहाँ पे या उसके नीचे वो बोलेगा कि वैलिड यूज़र नेम. अगर सरीन नहीं है तो इनवैलिड यूज़र नेम, उसका नीचे मैसेज आएगा. ओके, तो ये पासवर्ड में यहाँ से हटा देता हूँ. ओके, तो ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट. सो द अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं उसका, एजेक्स का. जैसे कि आपके पास ड्रॉप डाउन मालूम है आपको. इस ड्रॉप डाउन में यहाँ पे 2 स्टेट है. ओके, पहला स्टेट है आपका महाराष्ट्र, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, और दूसरा है आपका यहाँ पे सपोज गुजरात. ओके, जैसे मैंने महाराष्ट्र पे क्लिक किया, ओके, तो नीचे मुझे उसकी जो सब सिटीज़ है वो ड्रॉप डाउन में दिखनी चाहिए. जैसे मैंने महाराष्ट्र पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई है, ओके, फिर पुणे है, फिर उसके बाद नासिक है. तो ये वाली 3 सब सिटीज़ जो भी है या सिटीज़ है वो दिखनी चाहिए. जैसे मैंने गुजरात पे क्लिक किया, मतलब क्या, इसी ड्रॉप डाउन में मुझे क्या दिखना चाहिए यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ दैट मुंबई पुणे नासिक, मुझे क्या दिखना चाहिए, वापी है, फिर बड़ोदरा है, जो उसकी सिटीज़ है वो दिखनी चाहिए. मतलब जैसे मैंने क्लिक किया इस महाराष्ट्र के ऊपर तो मुझे ये सिटी दिख रही. गुजरात पे क्लिक किया यहाँ पे सिटी. तो मैंने यहाँ पे कोई रिफ्रेश बटन लिया क्या? नहीं. या पेज को रिफ्रेश किया क्या? नहीं. ना मैंने कोई इवेंट पे क्लिक किया? नहीं. जस्ट मैंने टाइप किया या मैंने महाराष्ट्र पे ऊपर क्लिक किया था तो मुझे उसकी सब्सिडी दिख रही है. तो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ द अजैक्स. ओके, तो ये अजैक्स एंटिटी जो इंजन है वो कैसे लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, उसके मैं बाद में बात करूँगा. बट and that the regarding the terms which is to be here, Ajax is nothing as asynchronous, and what mean by the synchronous we discuss right now here. So that regarding one the image we have. okay, तो सपोज मेरे पास ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र में या मेरे पास वेब पेज है, उस वेब पेज में 3 स्क्रिप्ट चल रही है, जावा स्क्रिप्ट चल रही है. ओके, पहले वाला जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे, वहाँ पे सपोज वॉच है, उस वॉच का मैंने कोडिंग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बनाया, वो चल रहा है. सेकंड में मेरा लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज पे मैंने क्लिक किया सपोज, तो वो JS पे आएगा, मतलब अजैक्स के ऊपर आएगा और जावास्क्रिप्ट के ऊपर आएगा. और जावास्क्रिप्ट के ऊपर आने के बाद वो डेटाबेस पे चेक करेगा, फिर पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड देखेगा और इसको रिस्पॉन्स देगा. ओके, फिर तीसरा चीज़ जो है यहाँ पे कैलकुलेटर है, वो भी मैंने कैलकुलेटर जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया है. ओके, तो तीनों चीज़ में मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया. तो साइमल्टेनियसली तीनों चीज़ें चल रही है. ओके, और तीनों चीज़ का मुझे रिस्पॉन्स भी आ रहा है. तो एक तो अजैक्स के थ्रू आ रहा है, जावास्क्रिप्ट में लिखा है मैंने अजैक्स का कोड. ओके, और दोनों है जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में लिखा है. तो तीनों साइमल्टेनियसली रनिंग हो रहे हैं, तो तीनों का रिस्पॉन्स साइमल्टेनियसली आ रहा है. मतलब क्या, दैट टर्म वी कॉल्ड एज असिंक्रोनस. क्या बोलेंगे हम इसको? असिंक्रोनस. ओके, और मैंने बोला कि सबसे पहले आपके वेब पेज में सबसे पहले वॉच रन होना चाहिए, फिर उसके बाद लॉगिन पेज रन होना चाहिए, उसके बाद थर्ड वाला जो रहेगा वो कैलकुलेटर रन होना चाहिए. मतलब वन आफ्टर अनदर, जो मैं बोलूँगा अकॉर्डिंग टू दैट द स्क्रिप्ट विल बी रन ऑन देयर. ओके, ऑन वेब ब्राउजर. सो दैट इज अ थिंग और वी कॉल्ड एज अ सिंक्रोनस. ओके, वन बाय वन जो रन होगा अकॉर्डिंग उसे हम बोलेंगे सिंक्रोनस, और साइमल्टेनियसली सब कुछ रन होगा और रिस्पॉन्स आएगा, दैट इज वी कॉल्ड एज असिंक्रोनस. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. ओके, तो ये जो टेक्निकल टर्म्स थी मैंने थोड़ी सी क्लियर कर दी आपको. ओके, कि अजैक्स कैसे रन होगा, फिर वेब सिस्टम आर्किटेक्चर कैसे रन होता है, फिर उसके ऊपर अजैक्स का इंजन कैसे बैठता है,
फिर सिंक्रोनस और सिंक्रोनस टर्म क्या है, दैट इज अ थिंग वी हैव टू क्लियर ऑन देयर. द नेक्स्ट इज what mean by the Ajax. So right now come to the definitions. Okay, so Ajax allows the web pages to be updated asynchronously, okay, by exchanging the data with a web server behind the scenes. ओके मतलब कि Ajax आपका जो वेब पेज में आपको अपडेट करना था, ओके, अपडेट इन द सेंस मैंने महाराष्ट्र पे क्लिक किया था तो महाराष्ट्र के रिगार्डिंग सब सिटी चाहिए थी, गुजरात पे अब क्लिक किया था तो गुजरात की सारी जो भी सिटीज़ थी वो अपडेट हो गई. तो ये असिंक्रोनसली हो रहा है. असिंक्रोनसली मतलब क्या, उसके साथ अगर आपने जावा की अदर स्क्रिप्ट भी लगाई होंगी वो भी चलेंगी. तो ये सब लेना देना हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज इन द डेटा ऑफ द वेब सर्वर बिहाइंड द सीन्स. मतलब ये सब बैकग्राउंड में हो रहा है, आपको दिख रहा है क्या, वो नहीं दिख रहा है. ओके, सो दिस इज मीन दैट it is possible to update the parts of web page without reloading a whole page. मैंने उसके रिगार्डिंग कोई भी पेज को रिफ्रेश नहीं किया था या कोई भी पेज को रीलोड नहीं किया था यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली मैंने जैसे भी क्लिक किया तो वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, या मैंने जो कोई भी टाइप किया तो वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं यूजिंग अ एजाक्स ओनली. अगर मैं एजाक्स इंजन का यूज़ करता हूँ तो ये सारी चीज़ें हो सकती है. ओके, तो एजाक्स इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, एजाक्स आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. तो एजाक्स कैसे चलता है, तो एजाक्स मॉडल क्या है एग्जैक्टली. ओके, तो मैंने उसका थोड़ा सा सिनेरियो आपको दे दिया था. ओके, बट वो कैसे चलेगा, ओके, दैट इज अ थिंग वी हैव टू डिस्कस. और ये वाला जो क्वेश्चन है एजाक्स मॉडल का या एजाक्स कैसे रन होता है, दैट इज दे आस्क द क्वेश्चंस नंबर ऑफ टाइम इन यूनिवर्सिटी पेपर. ओके, तो जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पे जो भी मुझे डायग्राम दिख रहा है मैं या दिखता है उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ओके, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है. ओके, तो जैसे एजाक्स पहले हम देखते हैं कि एजाक्स इंजन में क्या क्या होता है. एजाक्स इंजन में जो होता है सबसे पहले वहाँ पे एक XML HTTP रिक्वेस्ट नाम का क्लास है. उस क्लास में बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि आपका एजाक्स स्क्रिप्ट को रन करते हैं. ओके, तो कैसे रन करेंगे हम इसे. सबसे पहले तो ये ब्राउज़र है. सबसे पहले मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ यहाँ पे कि ये ब्राउज़र है आपका और ये वेब सर्वर है. ओके, और ये आपका डेटाबेस है. यहाँ पे आपका ये डेटाबेस है. तो सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन मतलब क्या कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपने प्रेजेंट किया वेब पेज के ऊपर, तो वहाँ पे जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो दैट इज़ नथिंग एज व्हाट योर प्रेजेंटेशन. तो जैसे भी लॉगिन पे क्लिक किया आपने तो यहाँ से प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद बटन तो जावास्क्रिप्ट कॉल होगा. तो जावास्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पे आएगी. यहाँ पे मतलब कहाँ पे, एजाक्स इंजन के ऊपर आएगी. जैसे एजाक्स इंजन के ऊपर आया तो वहाँ पे XML HTTP जो रिक्वेस्ट का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है वो कॉल होगा. ओके, जैसे वो कॉल होता है तो वहाँ से वो रिक्वेस्ट जाएगी HTTP रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में जो हमने देखा था एजाक्स इंजन के साथ. ओके, तो वो सेकंड वाला स्टेप होगा ये वाला. ओके, तो यहाँ से रिक्वेस्ट आई और यहाँ से रिक्वेस्ट अभी सेकंड वाली रिक्वेस्ट बन गई. ओके, तो होने के बाद क्या होता है कि ये वेब सर्वर को मालूम पड़ा कि यार जो रिक्वेस्ट आई है मुझे वो XML HTTP के रिक्वेस्ट के थ्रू आई है, मतलब एजाक्स के थ्रू आई है. तो वो रिक्वेस्ट क्या करेगा, रीड करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जैसे कि PHP सर्वलेट ASP जो भी कुछ है. ओके, और वो कहाँ पे पास कर देगा, आपके डेटाबेस को पास कर देगा यहाँ पे. ओके, डेटाबेस से पास होने के बाद वो देखेगा यस मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई थी यूज़र नेम और पासवर्ड की, तो वो डेटाबेस में चेक करने के बाद उसको रिस्पॉन्स दे देगा किसको, वेब सर्वर को, थ्रू दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगेन PHP एंड सर्वलेट. ओके, वो वेब सर्वर को मिलने के बाद वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स मिलने के बाद वो क्या करेगा, एक XML का रिस्पॉन्स मिलेगा उसे. वो रिस्पॉन्स मिलने के बाद वो किसे दे देगा, वो रिस्पॉन्स उस ब्राउज़र को दे देगा. ओके, किसको दे देगा, इस ब्राउज़र को दे देगा. ब्राउज़र को मिलने के बाद वो क्या करेगा, yes I got the XML HTTP request from the web server and then regarding the changes they related you show on that the browsers. मतलब regarding the changes मतलब क्या कि मैंने यहाँ पे लिखा था यूज़र नेम
सरीन। ओके, तो सरीन मैंने जैसे लिखा था एन लिखा, लिखने के बाद एक्सएमएल क्या करेगा, उसके नीचे जो मैसेज देना था आपको, ओके, वो मैसेज उसको दे देगा। मतलब इसका पोजीशन बोल देगा, पोजीशन भी बोलेगा और क्या मैसेज देना है वो भी बोल देगा। मतलब सरीन के नीचे जो पोजीशन है, ओके, उस पोजीशन पे आपको क्या मैसेज देना है। मतलब सरीन इस डेटाबेस में होगा, ये वाले डेटाबेस में होगा, तो क्या बोलेगा, वैलिड यूजर नेम। अगर इस डेटाबेस में नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा यहाँ पे, इनवैलिड यूजर नेम। सो दैट थिंग वी डिस्कस इन अजैक्स मॉडल ऑल्सो। तो सेम थिंग मैंने देखा था आपको यहाँ पे इस डायग्राम में, अजैक्स इंजन के थ्रू ये मैं रन कर सकता हूँ इस तरह। बट आपको जब आप एग्जाम्पल दोगे तो आपको यही डायग्राम देना है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है कि अजैक्स इंजन में हम एक क्लास का यूज करते हैं, उस क्लास का नाम है आपका XML HTTP रिक्वेस्ट। तो उसी HTML क्लास में, XML HTTP क्लास में बहुत सारे मेथड्स है, वो क्या क्या है वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे वो आपको समझ में आएगा उस क्लास के बीच में सारी मेथड्स क्या है और क्या करती हैं, तो हम प्रैक्टिकली हम एक एक एग्जांपल लेंगे उसका। ओके, तो यहाँ पे जो भी मैंने बोला था अजैक्स का यूजेस और वर्क्स क्या है हम देखेंगे, और मैंने जो बोला वही आपको थ्योरेटिकल लिखना स्टेप बाय स्टेप। ओके, देन नेक्स्ट, तो अजैक्स इंजन में आते हैं हम यहाँ पे। तो अजैक्स इंजन में क्या क्या लिखना है या क्या क्या होना चाहिए। तो नॉर्मली वेब सर्वर में आपको क्या क्या करना था आपको मालूम था, जैसे कि आपने सर्वलेट का यूज़ किया था कि एक रिक्वेस्ट है ब्राउज़र के भी वेब सर्वर में आती है, फिर यूज़र ने पासवर्ड चेक करती है, फिर पासवर्ड उसको पास करती है। तो सेम चीज़ करनी है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड क्या है, अजैक्स इंजन है। तो वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ना मैं XML HTTP रिक्वेस्ट का जो भी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। सपोज मैंने वेरिएबल नाम लिख दिया यहाँ पे, वेरिएबल REQ इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, न्यू HTTP रिक्वेस्ट लिख दूंगा। ओके, जैसे बन गया, मतलब क्या, REQ नाव का आपका ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। ओके, वो बनने के बाद अभी उस अजैक्स इंजन में आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है। उस स्टेटमेंट में आपको लिखना है कि आपका रिक्वेस्ट जो भी है वो क्या है। ओके, अभी रिक्वेस्ट क्या है, प्रीपेड कैसे करना है उसको। ओके, मतलब प्रीपेड मतलब क्या, कि उसमें मेथड कौन सी लिखनी है, URL कौन सा लिखना है, ये आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो असिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है, वो सारी चीज़ें आपको बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा XML HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू। फिर सेकंड थिंग क्या है आपकी, आपको स्टेटमेंट प्रीपेड करना पड़ेगा, और स्टेटमेंट प्रीपेड होने के बाद आपको वो सेंड करना है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, सेकंड थिंग क्या है, प्रीपेड करना है स्टेटमेंट, और थर्ड थिंग क्या है आपका, वो सेंड करना है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको बनानी है। तो अभी प्रीपेड करना मतलब क्या, कि यहाँ पे ये मेथड लिखना है आपको, ओपन मेथड। ओके, तो ओपन मेथड में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, कि आपका जो मेथड है वो डू है या पोस्ट, गेट है या पोस्ट है, कौन सा है, गेट और पोस्ट। सो दैट गेट एंड पोस्ट रिगार्डिंग वी डिस्कस इन डिटेल ऑलरेडी इन फॉर्म वैलिडेशंस वीडियो में। ओके, हमने वो ऑलरेडी देखा है गेट और पोस्ट मेथड में डिफरेंस क्या है, सारा डिटेल हमने फॉर्म वैलिडेशन के लेक्चर्स में देखा है। ओके, तो नेक्स्ट URL, अभी ये URL है तो कहाँ पे देनी है आपको, मतलब कि जो रिक्वेस्ट मेरे ब्राउज़र के थ्रू आई थी यहाँ पे। ओके, तो ये वाला, ओके, ये वाली, ये ब्राउज़र के थ्रू मेरी जो रिक्वेस्ट आई थी यहाँ पे एज ए इंजन में, तो वो रिक्वेस्ट मुझे डेटाबेस में देनी है, या कोई भी एक डेटाबेस के जगह पे मैंने एक PHP पेज ले लिया, जो कि PHP जो भी है वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है। ओके, इस PHP में मैंने क्या किया, यूज़र नेम और पासवर्ड या जो भी मेरे ड्रॉप डाउन की जो मैंने लिस्ट मैंने एग्जांपल लिया था वो सारी सेव है PHP फाइल में। डेटाबेस ले सकते हैं, अदरवाइज PHP फाइल ले सकते हैं, PHP फाइल में मैं सेव कर सकता हूँ।
ओके। तो मैंने क्या कि एक PHP फाइल में रख दिया सपोज यहाँ पे, तो इस एजेक्स इंजन का थ्रू जो रिक्वेस्ट जाने वाली है इस PHP के यहाँ पे, तो PHP पेज का जो PHP पेज है सपोज ABC और .php का लोकेशन कौन सा है, उस लोकेशन का जो URL होगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, तो कहाँ पे डालना पड़ेगा, इस ओपन मेथड के URL में डालना पड़ेगा। और उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो भी रिक्वेस्ट मैं देने वाला हूँ ओके वो असिंक्रोनस है, मतलब उसको मैं डिनोट कैसे करूँगा, एक बुलियन वैल्यू से करूँगा। बुलियन वैल्यू क्या होगी, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू में लेता हूँ मतलब क्या, असिंक्रोनस, साइमल्टेनियसली वो उसका रिस्पॉन्स मुझे आना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी स्टेटमेंट प्रिपेयर भी कर लिया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया, और नेक्स्ट उस स्टेटमेंट को और उस रिक्वेस्ट को मुझे सेंड करना है। तो वी हैव द अनदर मेथड दैट नेम इज द सेंड मेथड। ओके, तो ये सारी मेथड जो है, ओपन मेथड, सेंड मेथड, वो इस ऑब्जेक्ट के दरमियान है। ओके, उस ऑब्जेक्ट के बीच में है। तो मैं कैसे लिखूंगा फिर उसको, रिक्वेस्ट डॉट आपका रहेगा ओपन, ओपन में लिखना आपको URL, मेथड और असिंक्रोनस, फिर रिक्वेस्ट डॉट सेंड, इस तरह लिखना है। ओके, और मैं उसको सेंड कर दूंगा। बट सेंड करते समय ओके द थिंग इज व्हाट, अगर आपने मेथड अगर गेट लिखी है तो सेंड करते समय आपको कुछ भी वहाँ पे स्ट्रिंग नहीं पास करना है यहाँ पे सेंड मेथड में। ओके, अगर आपने मेथड ली है यहाँ पे पोस्ट, तो सेंड मेथड में आपको क्या करना है, स्ट्रिंग पास करना है यहाँ पे, अगर स्ट्रिंग है तो। ओके, तो आप स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर सकते हैं सेंड मेथड में। यस, दैट इज द डिफरेंस। देन वही उन्होंने दिया है कि सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर यूज फॉर द गेट रिक्वेस्ट। ओके, एंड सेंड स्ट्रिंग सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर यूज्ड फॉर पोस्ट रिक्वेस्ट। अगर आपकी मेथड पोस्ट है तो वो आप सेंड मेथड में क्या करोगे, स्ट्रिंग का यूज करोगे। देन उसके बाद तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया था कि यहाँ पे चीज ब्राउजर के थ्रू एजेक्स इंजन के डेटाबेस में आ गई। ओके, अभी डेटाबेस में ये वन वे हो गया, मतलब मैंने दिया सेंड मेथड किया, सेंड मेथड से डेटाबेस में आ गया। अभी उन्होंने क्या बोला है कि ऑन रेडी स्टेट चेंज, मतलब ओके यहाँ पे ऑन रेडी स्टेट चेंज, डिफाइन अ फंक्शन टू बी कॉल्ड व्हेन द रेडी स्टेट प्रॉपर्टी चेंजेस। मतलब कि सिर्फ अभी तक मैंने वन वे ही देखा था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से अभी रिक्वेस्ट आ रहा है डेटाबेस से वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर से जावास्क्रिप्ट में और एजेक्स इंजन में आ रहा है। तो जैसे वो जावास्क्रिप्ट एजेक्स इंजन में आएगा तो दैट टाइम वी हैव टू रिक्वायर्ड ऑन रेडी स्टेट चेंज। मतलब मैंने दे दिया सेंड, पर जो रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स किस तरह से मैं देखूंगा, ये ऑन रेडी स्टेट चेंज फंक्शन से देखूंगा। ओके, तो ऑन रेडी स्टेट फंक्शन अगर मैंने लिया तो मतलब क्या कि डेटाबेस से लेके एजेक्स इंजन पे जो जो चीज़ें होने वाली है वो उस फंक्शन के थ्रू मैं देख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या देख सकता हूँ वहाँ पे कि उसके बीच में एक मेथड है रेडी स्टेट चेंज और रेडी स्टेट, मतलब कि मैंने बोला कि रिक्वेस्ट डॉट रीड रेडी स्टेट। ओके, ये कहाँ पे होगा, ये मेथड सॉरी ये वेरिएबल रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट ये इस फंक्शन के बीच होगा। कहाँ पे, ये वाले ऑन रेडी स्टेट चेंज के फंक्शन के बीच में होगा। हम प्रैक्टिकली उसको रन भी करने वाले हैं और ये स्क्रिप्ट चलाने भी वाले हैं और लिखने भी वाले हैं। तो ये अभी सिर्फ फिलहाल आप ध्यान में रख लो कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। सेंड करने के लिए अलग चीज़ है और रिस्पॉन्स लाने के लिए अलग फंक्शन है। ओके, रिस्पॉन्स जब आएगा तो ऑन रेडी स्टेट फंक्शन के बीच में आएगा। तो ऑन रेडी स्टेट फंक्शन जब तैयार होगा या रेडी होगा तो उसके बीच में आपको क्या क्या देखना है। ओके, तो सबसे पहले क्या देखना है, रिक्वेस्ट डॉट, ये रिक्वेस्ट क्या है, XML HTTP के रिक्वेस्ट का वेरिएबल नेम है। देन
रेडी स्टेट, ओके। तो रेडी स्टेट इक्वल टू सपोज अगर 4 है, मतलब 4 मतलब क्या है यहाँ पे, चलो मतलब कि रिक्वेस्ट जो मैंने दी थी, ओके, ऑब्जेक्ट बनाया, प्रीपेड स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट सेंड की थी, तो वो रिक्वेस्ट जो भी गई है मेरे डेटाबेस में वो इनिशियलाइज नहीं हुई अभी तक, ओके, या सर्वर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, या रिक्वेस्ट रिसीव्ड नहीं हुआ है, या रिसीव्ड हुआ है, या प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हुआ है, और लास्ट में रिक्वेस्ट फिनिश हुआ और रिस्पॉन्स रेडी हो गया। मतलब अगर मेरा रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट इक्वल टू 2 है, मतलब क्या कि रिक्वेस्ट आपका सिर्फ रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड होने के बाद उसको प्रोसेस नहीं हुआ है या इसका रिस्पॉन्स नहीं बना है, ओके। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, 4 मतलब क्या, रिक्वेस्ट आपके पास प्रोसेस भी हुई है, इनिशियलाइज भी हुई है, उसका रिस्पॉन्स भी रेडी है, ओके, दैट इज अ थिंग। देन उसके साथ आपको देखना है वहाँ पे उस ऑन रेडी स्टेट चेंज फंक्शन में कि जो भी स्टेटस है आपका रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस, ओके, इक्वल टू अगर मेरा है 200, मतलब कि आपका जो भी रिक्वेस्ट गया था वो उसका रिस्पॉन्स ओके है, ओके, उसका रिस्पॉन्स क्या है, ओके है। अगर 403 है मतलब क्या, फॉरबिडन है, और 404 मतलब क्या, नॉट फाउंड है। मतलब जो भी मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे से यहाँ पे गया था, यहाँ पे से यहाँ पे, ओके, तो 4 मतलब क्या, रिस्पॉन्स रेडी हो गया था, और 200 मतलब क्या, ये उसको मिला भी था और उसने उसको सेंड भी कर दिया था, ओके, इसका मतलब ये हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा फिर, यहाँ पे जैसे उसको 200 मिलता है तो रिस्पॉन्स टेक्स्ट, तो रिटर्न द रिस्पॉन्स डेटा एज अ स्ट्रिंग, ओके, मतलब कि उस एजेक्स इंजन में उसको मालूम पड़ गया कि 200 ओके, रिस्पॉन्स भी मेरे पास ओके है, ओके, और मेरी जो रिक्वेस्ट बनी थी उसका स्टेट भी बराबर है, तो सब कुछ चीज़ें तो मेरे पास आ गए रिस्पॉन्स की। अभी रिस्पॉन्स मुझे क्या देना था कि यूज़र नेम वैलिड, ये जो टेक्स्ट है यूज़र नेम वैलिड, उस टेक्स्ट को उसकी पोजीशन बोल देना है। तो पोजीशन कैसे बोलूँगा, इस रिस्पॉन्स टेक्स्ट के थ्रू मैं जो भी टेक्स्ट है यूज़र नेम इज़ नॉट वैलिड और यूज़र नेम इज़ वैलिड, उस रिस्पॉन्स टेक्स्ट के थ्रू मैं उस पोजीशन को बोल दूंगा। अभी पोजीशन में कैसे देना है, क्या देना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। बट थिंग इज़ व्हाट, यहाँ पे रिस्पॉन्स टेक्स्ट में यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसमें ब्राउज़र के बीच में यूज़र नेम था यहाँ पे, ओके, और मैंने डाला था सरीन यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे वो रिस्पॉन्स टेक्स्ट मुझे देना है, कहाँ पे, इस रिस्पॉन्स टेक्स्ट मुझे इस पोजीशन पे देना है। तो मुझे इस पैराग्राफ का या इस ड्यू का मुझे क्या मालूम होना चाहिए, पोजीशन मालूम होना चाहिए, या ड्यू का मुझे नाम मालूम होना चाहिए। तो नाम के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इनर एचटीएमएल का यूज करके उसको वहाँ पे पोजीशन पे टेक्स्ट दे सकता हूँ, दैट इज अ थिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए एजाक्स के रिलेटेड। तो आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द एजाक्स। एजाक्स थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंटिटी हमने ऐड कर दी है, एजाक्स इंजन। तो एजाक्स इंजन हम कैसे बनाएंगे, ओके, और छोटी छोटी रिक्वेस्ट हम एजाक्स इंजन के थ्रू पीएचपी पेज को कैसे देंगे, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ओके। तो आई होप you understand those things, and definitely we discuss the practical in detail also. So thank you for, okay, and if you like my video, so please subscribe my video and share my video to other people who once are the Mumbai University as well, most, okay. So thank you.